ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। गुरुगोविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आज ये भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आम मैंने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर 28 अध्याय सारीचे एवं 29 अध्याय आज आरंभ करिबा। 29 अध्याय एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय, कारण आमे पूर्वर जो 2-3टी अध्याय पाठ करिथिले तार सारांश तार भावार्थ एठी सब वर्णना करा जायछि। आमे पढ़िथिले जे प्राचीन राजा को नारद सत्कर्म करने बुझाऊँच एवं से केतेगुड़िए नीति नियम श्रृंखला भक्ति आध्यात्मिक चिंतन ए संपर्क रे प्राचीन राजा को बुझाऊले एवं तांको अधिक भाव ताको विशेष भाव बुझाइबा से गोटे उदाहरण देथिले पुरंजन राजा चरित। किंतु से पुरंजन राजा चरित बहु गूढ़ तत्व थिला। गोटे पंच मस्तक थिबा अही थिला, गोटे अति सुंदरी तरुणी थिले, तांकर 10 जन परिवारी थिले। एमती विभिन्न जिनस सब जो कहुई एगुड़िक प्रकृत गुड़िए सूचना धर्मी कथा थिला, ताकू ठीक भाव बुझी पारि नथिले प्राचीन राजा। तेणु से नारद को यार भावार्थ यार तत्व बुझे देवाई निवेदन करछन्ति एई अध्याय। ताहेले ताकू टिके आमे मन दे श्रवण करबा आवश्यक, कारण एथिरे अनेक गूढ़ तत्वर कथा वर्णना करा जायछि। मैत्रेय उवाच से जे प्राचीन नृपवर नारद पादे देई शिर कहई अति हरसरे से मुनि ब्रह्मांक कुमरे। तेणु प्राचीन राजा ब्रह्मांग पुत्र नारदंकर पाद तले पड़ जाई कौन कहले प्राचीन रहिरुवाच भूमुनि तुम्भे ज्ञान पर कहिल आध्यात्म विचार तुम्भे जे परोक्षवादेन कहिल जे सांख्य कारण मुहे जी न पारिली चित्ते छेदी संशय कह मोते जे मार्गे बुझीबई मुहि से मार्गे कही गोसाई जे बा पंडित दृढ़मती ए अनुभव जे जानती आंभर एणे ज्ञान नाही आंभर एणे नाही ज्ञान विषय जड़े मन छन्न एणु न धरे ज्ञाने रति विवेक नोहे आंभमती भोमुनि फेड़ पुण ताहा मो अर्थे कुह पुण्य देहा से पुरंजनर विचार श्रवणी ज्ञान हेब मोर शुणी नारद महाऋषि ता भावे कहन्ति विशेषी। तेणु से कहिले प्राचीन बहिर बा प्राचीन राजा नारद को कहले आपण जो पुरंजन चरित कहले
ସେଥିରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନେକ ପରୋକ୍ଷ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନେକ ଗୂଢ଼ ଭାବାର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରଦ ଉବାଚ, ନାରଦ କହିଲେ, ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନ, କହିବା ପରୋକ୍ଷ ଯେ ଜ୍ଞାନ, ପୁରୁଷ ପୁରଞ୍ଜନ ଯେହି, କର୍ମରୁ ପୁର କଲା ସେହି। ତେଣୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ସେ କହିଥିଲେ ପୁରଞ୍ଜନ, ସେ କଥାକୁ ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ ବୋଲି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ବା ଗୋଟିଏ ଜୀବ। ପୁରୁଷ ପୁରଞ୍ଜନ ଯେହି, କର୍ମରୁ ପୁର କଲା ସେହି, କେକ ତ୍ରୟ ବେନିପାଦ, ବହୁ ଚତ୍ୱର ସେ ନିଷ୍ପାଦ, ଏମନ୍ତେ ନାନା ପୁର କରି, ଏ ଜୀବ ତା ମଧ୍ୟେ ବିହରି, ଅଜ୍ଞାତ ସଖା ଯାକୁ କହି, ଈଶ୍ୱର ନାମ ଅଟେ ସେହି। ତେବେ ପୁରଞ୍ଜନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ବିଦର୍ଭ ରାଜକୁମାରୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିତାଗ୍ନିରେ ସେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିତାଗ୍ନିରୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିତାଗ୍ନିରୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ହୁଏତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ? ଏଇଠି ଖୋଲିକିରି ସେ କହିଦେଲେ, ଅଜ୍ଞାତ ସଖା ଯାକୁ କହି, ଈଶ୍ୱର ନାମ ଅଟେ ସେହି। ତେଣୁ ଆମର କଡ଼େ କଡ଼େ ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ସଖା ଭାବରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଏ, ସେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ଦେଇ ଜଣେ ସଖା ହିସାବରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶାତୀତ ଦୋଷ ଆମେ କରିଯାଉ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପାପକର୍ମ କରିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଗୁଣକୁ, ପୁରୁଷ ଇଚ୍ଛିଲେ ଭୋଗକୁ, ତେବେ ପୁର ନବଦ୍ୱାରେ, ରଚନା କରେ ସେ ବେଭାରେ, ସେ ପୁରେ ହସ୍ତପଦ ଘେନି, କରଇ କର୍ମ ଲାଭ ହାନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ପୁରୁଷ ଇଚ୍ଛିଲେ ଭୋଗକୁ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଗୁଣକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକୃତି ସଦାସର୍ବଦା ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ କିଛି ଯାଏ, ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହେଲା ସେ କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ କେବଳ ଟାଣି ନେବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଇଚ୍ଛିଲେ ଭୋଗକୁ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତା'ର ଗୁଣ ବଳରେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ମଣିଷକୁ ଟାଣି ନିଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଭୋଗରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ପୁର ନବଦ୍ୱାରେ, ରଚନା କରେ ସେ ବେଭାରେ, ସେ ପୁରେ ହସ୍ତପଦ ଘେନି, କରଇ କର୍ମ ଲାଭ ହାନି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପୁରଟାରେ ମଣିଷ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆସି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଦେହ ଗଠନ ହେଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ଘର ହେଲା ବା ପୁର ହେଲା, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆତ୍ମା ଆସିକିରି, ଏଇ ପୁରରେ 9ଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି। ପୁରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ଗୃହଟିକି ଦେଖିକିରି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଥିଲା ଯେ ସେଠି 9ଟି ଦ୍ୱାର ସେ ଘରଟାରେ ଅଛି।
तेणु आप लक्ष्य करूँ आपण को जो घर खंडिक मिली अर्थात जो शरीरटी मिली एथिरे 9टी द्वार अच्छी ना नहीं। चक्षु है 2 द्वार, तापर कर्ण है 2 द्वार, 2 2 4 हो गले। नासिकार जो पुड़ा जोड़िक अच्छा ये हेले 2 द्वार, ये गले 6। मुख द्वार गोटे है 7, मल द्वार एवं मूत्र द्वार ये हेले 9। तेणु 9 द्वार रे शरीर गठित। ताहेले से जो शरीरर 9टी द्वार अच्छी ए द्वार कौन आम करवा ना ताकू आम हस्तपद द्वारा पवित्रता रक्षा करवा। पवित्रता रक्षा न कले ए शरीर बा ए पूरा अशुद्ध बा एकू बाह्य शत्रु आक्रमण करनब। जेमती से गंधर्व माने बा जबन माने आसी पुरंजनकर पत्नींकर पुर को नष्ट भ्रष्ट करदे। धरतु आपणकर गोटे घर अच्छी से घरे 2टी द्वार थाऊ बा गोटे द्वार थाऊ, जदि द्वार मुहंटी आपण अपरिष्कार कर रखिथिबे ताहेले केही भद्रलोक आपण घर को आसीबे कि आसीबे नाही। घर सामने मेंचे अढ़िया आपणकर अच्छी ताहेले किए किए आसीबे ता भितर को उई आसीबे, पिंपुड़ी आसीबे एवं मशा आसीबे। एमती धीरे धीरे विभिन्न दुष्ट जीव आसी आसी जदि ता अत्यधिक हो जाइथिबो खराब हो जाइथिबो ता भितर साप आदि विभिन्न सरीसृप आसीबे। ताहले से माने किए आसिले ना समस्त नकारात्मक शक्ति प्रवेश करी आसिले, किंतु सकारात्मक शक्ति कहीं भद्रलोक आपण घर को आसबे ना। कहे एत गंध गोबर गदाटे घर सामने अच्छी कि गुड़े अढ़िया पत्र गदा होती घर भर जीव किए। तेणु ठीक भाव आमर जो नवद्वार शरीर एकू जदि आम परिष्कार परिच्छन्न रखिबा ताहेले समस्त सकारात्मक शक्ति एठी प्रवेश करिब, नकारात्मक शक्ति आसी पारिबो नाही। कारण आखि द्वारा आम जदि भल देखिले, कान द्वारा जदि भल शुणिले एवं नासिका रंध्रे जदि सुबास ग्रहण कले, कौनसी कटु तिक्त बा कौनसी दुर्गंध को ग्रहण कले नहीं। जो माने मदिरा पान करुचंदी से माने कति कष्टे मष्टे पान करुचंदी, कते कौन आवश्यकता अछि ते गंध जिनस को आग्रह ग्रहण करिबा। ठीक से परि भाव मुख द्वारा आमे सात्विक खाद्य ग्रहण करिबा उचित एवं मल द्वारा एवं मूत्र द्वार पवित्रता रक्षा करिया उचित, ताकू परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। तेणु यहीपरि भाव नवद्वार को आम जदि परिष्कार रखिबा ताहेले ए पुरटी पवित्र रहिबो। से कथा से कहउचंदी तेबे ए पुर नवद्वारे रचना करे से बेभारे, जे पूरे हस्तपद घेनी करई कर्म लाभ हानि, से पूरे थाई करे भोग माया निर्बंधे अनुराग, ए पुरु अन्य पुरे जेहि भोग सुखादि नोहे तहि, ए जे मानव कलेबर अशेष देह मध्य सार। तेणु आमर गोटे जीव 84 लक्ष जोनि जन्म हो सारा पर मानव कलेबरटी पाए। कारण भगवान मनीष को भल पाती, एते छोट छोट कीट पतंग ठू आरंभ कर विशाल हाथी बा भयंकर सिंह व्याघ्र ये सबू तैयारी कर सारा पर भगवान मनीष को सृष्टि कले एवं मनीष देहरे देखिले दिव्य ज्ञान अच्छी। तेणु से सृष्टि बंद करदे एवं से कहले यही मोर प्रकृत भक्त हब, मते मन रखिब एवं मोर गुण को सदा सर्वदा प्रकाश करिवो। किंतु मनीष केतेबेले को रूप होउची, केतेबेले बाघ भली होउची, केतेबेले साप भली होउची, केतेबेले से को रूप धारण करूची ताहा कहि हेबो नाही। तेणु ए जे मानव कलेबर अशेष देह मध्य सार, ए पुर मध्य जीव रही इंद्रिय विषय रसे मोही, विविध सुख भोग सार जीव भुंजई मंदिर, से पुर मध्य बुद्धि नारी
एकासे सर्वत्र विहारी से जे ममत्वे होए छन्न बोलइए मोर सदन। तेणु जिंदी गोटे परिवार भितरे गोटे नारी रही थांती एवं जोटा कह जाए घर को सुंदर दिशे घरणी थिले तेबे से घरणी जमी घर शोभामंडन करुथांती ठीक से ही भाव भगवान आमको ये जो पुरटी देइचंदी ये जो देहटी देइचंदी या भितर घरणी किए समस्त सौंदर्य बा समस्त घरर मालिक किए मालिक है आमर बुद्धि बा मन होचे एथिरे मालिक। तेणु ता पाखरे भगवान विवेक भाव लुचिकी अछंती। मन तो कहब बहुत किछि करदेवा पे रसगोला थुआई सबू खाईदेवी ता मन हम किंतु विवेक कह अरे सब गुड़ा खाईदेबू किमती डायबिटीज हो पेट खराब हो तोर विभिन्न प्रकार हजमर समस्या सृष्टि हम। तेणु सेठी आमे निजको कंट्रोल कर विवेक द्वारा। तेणु सिमती नारी भाव ए घर भितरे रही मन से इंद्रिय मान को जड़े नारी जमी तांकर स्वामी को तांकर पुत्र कन्या को जेपरी भाव में परिचालित करेंगे से भाव में चलिए ठीक से भाव में मन हूँ इंद्रिय मानकर मालिक से तांको जेपरी भाव में चलेब से ठीक से भाव में चलिए। से नारी बसे जीव थाई इंद्रिय भोगे तो सहोइए। तेणु जीव आत्माटी जो रही पुरे बा ए देह भितरे से सबुबले मनर अधीन होकर अच्छी। इंद्रिय भोगे तो सहोई। तेणु तार सबुबले इच्छा इंद्रिय भोग करने इंद्रिय गण बुद्धि सखा तावृत्ति माने सखी लेखा ज्ञान कर्मेन्द्रिय गणे पुरुष भोगे विषय टाणी ज्ञान कर्म इंद्रिय दस एहांक भोगे जीव बस। तेणु एठी जे कहउचंदी जे पुरंजन होउचंदी जीव सी आसिले काहाकू देखिले ना ए जीव जितेबाला देह को आसी पहुँचला मन को देखिला एवं मन हूँ एठी नारी सदृश मनर जो अच्छी 10 परिवारी आमर कहुई संगेता 10 परिवारी घेनिण आसी सुंदरी। भागवत कही जितेबाला से नारी को पुरंजन देखिले से देखिले 10 जन परिवारी से सांगे धरिकी आसी। 10 परिवारी किए ये 10 परिवारी होचंदी ये मध्य सिंबलिक भाव में कहुला बा सूचना धर्मी भाव में कहुला जे से 10 परिवारी होचंदी 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय। तेणु ए 10 परिवारी की मन जो तार कंट्रोल रे न रखी पारिबो ताहेले से तांगर मालिक होई पारिबो नाही। पुरुष भोगे विषय टाणे ज्ञान कर्मेन्द्रिय गणे। तेणु ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय कथा ये कहगला एहांक भोगे जीवे बस ज्ञान कर्म इंद्रिय दस। तेणु जो 10 सखी प्रत्येक मनुष्यर 10टी सखी अच्छी से तांको ठीक भाव में जदि काम दे पारिब ताहेले से शांति रे चलिब एवं से माने जदि मन इच्छा काम करिगले ताहेले ये छटपट हेब एवं कष्ट पाइब। ए पाप पुण्य आदि करी बड़े भुंजई कर्म धरी। तेणु इंद्रिय मानक द्वारा से पाप करिपारे बा पुण्य करिपारे। ए पुर द्वारी सर्प जेही ए देहे प्राण अटे से ही से पंचवृत्ति रे संसार एणु कहिलु पंचशीर। तेबे आपण माने पूर्व कथा टिके स्मरण करिवे जे से जो नारी जो सुंदर पुरटी रहुथिले से पुर बाहरे गोटे जगुआली थिले बा द्वारी थिले। से द्वारी किए ना से गोटे अही
गोटे सर्प एवं तांकर 5टी मस्तक थिला पंचमस्तक एक ही से नारी द्वारपाल होई। तेणु 5टी मुंड थिबा गोटे द्वारपाल तांकर थिला एवं सेटा गोटे सर्प से से कहते जे पंचमस्तक एक अही से नारी द्वारपाल से ही। तेणु से नारीर द्वारपाल होकर थिले ताहले 5टी मुंड कहीं बोली कहगला एवं सर्प बोली कहीं कहगला एठी से हेटाकू से जिनस टी अति सुंदर भाव में बुझेदेले। ए पुर द्वारी सर्प जे ही ए देहे प्राण टे से ही। तेणु प्राण होची ए घरटीर दुआरी बा जी होची जगुआड़ी। कहीं ना जो जगुआड़ी एठू पलैज ए देह दुर्बल हो से खसी पड़ तार आउ किछि गुरुत्व रहिबो नाही। से द्वारी चलीगला अर्थ जमी आपणकर घरर कबाट जदि पूरा खोला करी आप दिन सारा रखीदे जी पारि सी पशि आसो एवं ए घरटा नष्ट भ्रष्ट हो। ठीक से हीपरि भाव एठी जो दुआरी अछंती बा द्वारपाल अछंती सी होचंती प्राण एवं से प्राण होचंती पंच प्राण। तेणु तांकर 5टी मस्तक बोली अच्छी बोली कह जाए। एवं से पंच प्राण किए ना आपण माने जानती आमर जो प्राण अछंती तांको पंच प्राण कह जाए। प्राण अपान व्यान उदान समान प्राण पान व्यान उदान एवं समान ये जो 5 प्राण अच्छी आम एवं तांकर विभिन्न कार्य मध्य अच्छी बोली आपण पूर्व समस्त प्रश्नोत्तर में बुझे दि जाए। तेणु को वायु को काम करती से संपर्क में आम आलोचना करें। जदि आपणकर किसी अबुझा थी ताहले आपण पचारि पारती ताहले से कहले ए देहे प्राण अटे से ही ए पुरद्वारी सर्प जेही से पंचवृत्ति रे संचार एणु कहिलु पंचशिर। पंचवृत्ति कहले पंच प्राण कथा कहगला। महत भट्ट जहा कही मनर नाम टे से ही से 10 इंद्रिंक नायक ताकू जीणंता नाही लोक ताकू जीणई जे बेजन से जोगी 3 भुवन। तेणु मन होची ए 10 इंद्रियर मालिक ताकू जदि गोटे जीव जय लाभ करिगला ताहले से 3 भुवनर मालिक हो जाई परिबो। उत्तर दक्षिण जा कही उत्तर दक्षिण जा कही राज्य पांचाल देश से ही ए 5 विषयर आड़ या तू बुझ मही पाल। तेणु से कहले जे ए राज्य जो कथा कहगला ये होची जे जो खीति आप तेज बोम मरुत जो पंचभूतरे आमर ए सृष्टि तैयारी हेची बा ए देह सृष्टि देह मध्य तैयारी हेची से पंचभूत होचंती राज्य पांचाल बोली जोटा कहगला। अर्थ 5टी शक्ति द्वारा ए देहटी सृष्टि हेची। खीत आप तेज व्योम मरुत ये जो 5 पंचभूतरे ए शरीर गठित होती। तेणु या ना पांचाल बोली कहगला। तेणु पुरंजन जाई निर्दिष्ट एक पांचाल राज्य रे जो रहउचंदी बोली कहगला। प्रकृत रे प्रत्येक व्यक्ति गोटे पांचाल राज्य रे रहुछि। ए 5 विषयर आड़ एहा तू बुझ महिपाल इंद्रिय छिद्र जेते कही ए पूरे नवद्वार से ही ए बेनी चक्षु नासा कर्ण जे मुख गुह्य लिंग स्थान एहा को नवद्वार कही इंद्रिय गण स्थान एही। तेणु 9टी द्वार जो अच्छी बोली कहगला नवद्वारपुर बोली कहगला। आमे जहाँ चिंता करुले से कथा मध्य भागवतकार कहले एबेनी चक्षु नासा कर्ण एबेनी चक्षु नासा कर्ण
तीन दुणे 6 होगला एवं मुख गुह्य लिंग स्थान एक कथा होगला 9 द्वारा यह को 9 द्वार कही इंद्रिय गण स्थान यही तेणु यही जो 9 द्वार अच्छा ये इंद्रिय मान जगी रही ए संगे जीवर गमन विषय करे आस्वादन नयन मुख नासा तार ए पूर्व दिग पंचद्वार उत्तर दक्षिण जा कही एबे निकर्ण द्वार से ही से कहले जे दिग कथा कहगला ए पूर्व दिग पंचद्वार नयन मुख नासा तार नयन मुख एवं नासा ये सब है पूर्व दिग कारण आपन जुआड़े मुह कले से दिग है पूर्व यही आड़ को आपणकर नयन अच्छी नासा अच्छी कर्ण मध्य रही तापर से कहते उत्तर नाई ये जो ए पूर्व दिग पंचद्वार कहले ए पूर्व दिग पंचद्वार नयन मुख नासा तार नयन मुख एवं नासा आखि जोड़िक सामना को अच्छी आपणकर नासा जो हूँ नाकर जो दुई पुड़ा ये मध्य सामना को अच्छी एवं पार्टीटी सामना को अच्छी तेणु ये हेले पूर्वद्वार ताहले उत्तर आ दक्षिण द्वार किए उत्तर दक्षिण जा कही एबे निकर्ण द्वार से ही कर्ण दीटा का आमर जदि आम सामना को पूर्व दिग को मुख कले कर्ण दक्षिण एवं उत्तर को रहिला तेणु दी दिग को जो रहिले उत्तर दक्षिण दी कर्ण रहिले ये हेले दीटी दिग उत्तर आ दक्षिण पश्चिम दिगे निद्वार ए लिंग गुह्य नृपवर एवं लिंगद्वार एवं गुह्यद्वार ये रहिले आपणकर तल भागरे तेणु पूर्वर विपरीत भाग तो हूँ पश्चिम तेणु यहीपरि भाव में गोटे पुरर 4 दिग रहिला बोली कहगला ए लिंग गुह्य नृपवर पश्चिम दिगे बेनिद्वार ए नवद्वारेण निर्मित जे झा विषये आस्वादित सेवंती आत्मारे विहरी एक आरे के आगुसरी खद्योता विमुखी दुई चक्षुर नाम जे बोलाई एबे निद्वारे पुरंजन करई रूप आस्वादन दी चक्षु द्वारा ये जो पुरे जी रही से समस्त रूप को आस्वादन करुच्ची नलिनी नालिनी जे दुई नासिका नाम जे अटई आमर जो दी पुड़ा अच्छी नाकरे गोटे नलिनी गोटे नालिनी ए द्वारे अवधूत नाम गंधादीप ए द्वारे अवधूत नाम गंधादि आमोद पवन सुगंध दुर्गंध सहिते ए द्वारे घेनई निरते बदन नामे मुख्य द्वार रसज्ञ वाक्यता मधुर स्वादु स्वादु द्रव्य जेते ए द्वारे आस्वादे निरते तेणु मुख द्वारटी हूँ सबुठ मुख्य द्वार कारण ये जोड़े काम हुए गोटे हूँ आपण बदनरू कुभाषा बाहरी पारे बा सुभाषा बाहरी पड़े तेणु जिमती सुगंध एवं दुर्गंध नासा ग्रहण करी तार केतेबेले दुख प्रकाश करे केतेबेले सुख प्रकाश करे ठीक से ही परि भाव में आमे जदि कु कथा क्या कहबा ताहेले आम पई दुख लिखाई सु कथा कहले आम पई सुख मध्य आछि तेणु से ही परि भाव में जदि खाद्य कथा कहबा जदि आपण स्वादुयुक्त खाद्य खाइले ताहेले आपन भल लागि पारे अस्वादु खाद्य खाइले खराब लागि पारे एवं एई पटे मध्य एई खाद्य रे दी भाग करा जाई पारे गोटे सात्विक खाद्य गोटे राजसिक खाद्य बा गोटे तामसिक खाद्य तेणु एहीपरि भाव में विभिन्न प्रकार खाद्य खाइले आपणकर विभिन्न भाव सृष्टि हुए एद्वारे आस्वाद निरते स्वादु स्वादु द्रव्य जेते पितृः देवहु नाम एवेनी कर्ण दक्ष वाम
କାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପିତୃ ଏବଂ ଦେବହୁ। ଏ ଶ୍ରୁତି ଯୋଗେ ପୁରଞ୍ଜନ କରଇ ଶବ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ ନିନ୍ଦାସ୍ତବନ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଏ ଦ୍ୱାରେ ଘେନଇ ନିରତେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାନ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଛେ କାହାଠୁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ବା ଯଦି କେହି ବିନା କାରଣରେ ଆମ ଏ ଶରୀରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଭୁଲ କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ନିନ୍ଦା ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାନରେ ଆମେ ଆମର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଥାଏ ବା ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଥାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚାଳ ବୋଲି କହି ଏ ପିତୃଜାନ ଦେବଜାନ ଗତିରେ କରଇ ଗମନ ଏ ମାର୍ଗେ ଥାଇ ନିରନ୍ତରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ନୃପବରେ। ତେବେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ମାର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ହେବ ପିତୃଜାନ, କିନ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେବଜାନ ପାଇବା। ପିତୃଜାନ ପାଇଲେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେବଜାନ ପାଇବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯିବା। ଏ ପିତୃଜାନ ଦେବଜାନ ଗତିରେ କରଇ ଗମନ ଏ ମାର୍ଗେ ଥାଇ ନିରନ୍ତର ସେ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ନୃପବର ଆସୁରୀ ଦ୍ୱାର ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ମଦ ଉପସ୍ଥର ନାମ ବ୍ୟବାୟ ନାମ ରତି କହି ପ୍ରଜା ସର୍ଜନା କରେ ତହି ତା ଅଧୋ ଭାଗେ ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିରର୍ତି ନାମଟି ତାହାର ବୈଶସ ନାମ ନର୍କ କହି ସେ ଦ୍ୱାର ମଳ ଉତ୍ସର୍ଗଇ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ବୋଇଲୁ ଯାହା ଏ ପାଣି ପାଦ ବୋଲି ତାହା ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରିଙ୍କ ବିଷୟ କହିବା ଶୁଣ ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେ କରେ ଯେଝା ବିଷୟ ଅଧିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ଧ ଯେ ପୟର କହିବା ଏଥିର ବିଚାର ଏ ଇନ୍ଦ୍ରି ଯୋଗେ ପୁରଞ୍ଜନ କାମାର୍ଥେ କରଇ ଗମନ ଅନ୍ତର ପୁର ବୋଲି ଯାହା ହୃଦୟ ପଦ୍ମ କହି ତାହା ବିଶୁଚି ନାମଟି ତାହାର ଏ ମନ ନାମ ନୃପବର ତାବ ସେ ଥାଇଣ ପୁରୁଷ ଭଜଇ ହରସ ବିରସ ଏ ଜୀବ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଚଳଇ ବୁଦ୍ଧି ଜହିକି ଚଳାବଇ ତାବ ସେ ପୁରୁଷ ଧୀନ କରଇ ନାନା କର୍ମମାନ ଏ ଦେହରଥ ସ୍ୱରୂପେଣ ତୋତେ କହିଛି ନୃପରାଣ। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ପାଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଏଇଠିକି ଚାଲ ଏଇଠିକି ଯାଅ, ସେ ଚାଲେ, ସେ ଯାଏ, ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଯାଏ। ଏବଂ ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଏକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦିଅ, ଏଇ କାମଟା କର, ସେ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ମନ ଯଦି ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ତାହେଲେ ହାତ ପାଦ ଠିକ୍ କାମ କରିପାରିବ। କାରଣ ଏମାନେ ହେଲେ ଅନ୍ଧ ଭଳି କଥା। ଯେମିତି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ସେ ଚାଲୁଥିବ, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବ କେଉଁଠି ଖାଲ, କେଉଁଠି ଢିପ, କେଉଁଠି କଣ୍ଟାଲତା ଅଛି, କେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ବତେଇ ଦେଲେ, ଜଣେ ଯଦି କହିଦିଏ ଯେ ଏଇ ବାଟି ଯାଅ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ବାଟ, ସେ ସେଇ ବାଟି ଚାଲିବ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
तेणु मन जदि निर्मल मन होइथिबो ताहेले से गुड़ को कहब टे मंदिर को चल सेठी टे देवदर्शन करवा किंतु जदि से कथा न करी ताकू बतेब चा मध्यशाला को जीवा सेठी सुरार रस आस्वादन करूँ ताहेले गोड़ सियाड़े भी चलिया। तेणु गोटे पट है निवृत्ति मार्ग गोटे पट है प्रवृत्ति मार्ग। तेणु से मंदिर जीव कि मध्यशाला जीव से कथा गोड़ पाखे नहीं ताकू मन निर्देश देले से अनुसार जीव। तेणु से हाथ में कलम धरिब कि हाथ में कुराढ़ी धरिब कि हाथ में छुरी धरी कहार गला काटिब से कथा मध्य मन निर्देश देव। तेणु हाथर मध्य किसी आयत्त भी नहीं। तेणु एठी भागवतकार कहले जे ए पुर को परिष्कार रखिबा मन को निर्मल रखिबा ए जो परमात्मा ठारू आसीथिबा जीवात्मा को शुद्ध पूत पवित्र करी रखिबा पाई ए देहरे थिबा जो आत्मा से टिके सतर्क हवा दरकार नहेले केतेबेले देह ध्वंस होइजिब केतेबेले नष्ट होइजिब ताहा कहि हेबो नाही। तेणु से आमर गंगाधर कौन लिखिथिले बालकालु धन धर्म मु संजीवी ए जीवन निश्चित बाल्यकालु धर्म धन मु संजीवी ए जीवन निश्चित के जानी काहार आजी मृत्यु काल होइजीव उपस्थित। तेणु मृत्यु केतेबेले आसीजीव कहि हबो नाही। सेथिपाई आमे आरंभरू अल्प अल्प हो पछके टिके धर्म रूपक धन को संचय करने को चेष्टा करिया। ताहेले प्रिय सज्जन वृंद आजिर भागवत वाणी को एठी विश्राम दबा एवं आमे परवर्ती पर्याय पुणी आलोचना करिया। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम्।